Okay, so we are live and we'll just wait for some viewers to join us. And basically, when they'll confirm that they can hear and see us clearly, so here we'll begin. Okay? Sure. It's really hot, yeah. Really, And really is it hot. more hot? Is it more hot in Karachi? In Lahore, with it's like 46. Hey, no, actually, we're still live. थोड़ा सा glitch हो गया था, so okay. Sure. So I do have a comment. Hi, can you confirm if you can hear us? Hello, Huma. Hello, Shiraz. Please just mention in the comments if you can still hear us. And I think they can hear us anyways. I'll just Yeah. begin. Okay. Assalamu alaikum everyone. This is Rida Zainab from Creative India House, and today I have with me Hajar Zafar. She is a pediatric occupational therapist. She has about more than 2 years of experience. She did her bachelor's in occupational therapy from Children's Hospital Lahore, and currently she's working in Lahore Children's Center, and she's a visiting occupational therapist at Lahore Health City Hospital. Assalamu alaikum, Hajar. How are you? Walaikum assalam. How are you? I'm good, thank you. So, before we begin, I know Eid के तीनों दिन पूरे हो गए हैं technically, but still, Eid Mubarak. कैसी गुजरी आपकी ईद? Social distance khair mubarak. Social distancing. Yeah, it was a social distancing Eid, but it was great. हाँ नहीं मतलब at the end of the day I suppose family के साथ हम हैं तो that's what matters. That's what matters. We got to know what family bonding is. More family time, more quality time. So it was a good thing. Exactly. So, Harsha, please tell, मेरे से तो मैंने आपका intro दे ही दिया, but still tell the viewers about yourself, how you got into this field. Into this field is quite dramatic because I always loved biology. So my mama wanted me to be an engineer. So I was like, no, for mathematics because मुझे थोड़ा mathematics से मैं भागती थी. But so इसी तरह करते करते I was मुझे लगता था because being a doctor is a very huge responsibility and like उसमें emergency cases and everything तो उसके लिए आपकी जो है आपकी nerves बहुत strong होनी चाहिए and all that. So I was thinking for other fields. So मुझे physiotherapy देखी और फिर इसी तरह Google पे randomly आए search for OT कि OT क्या होता है and then I got to know कि अच्छा ये तो बड़ी interesting field है. Then I checked कि लाहौर में किधर है तो वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल था. So I just brought their prospectus और first number पे मेरा tick OT था and then I got a call from there one day और फिर यहाँ से वहाँ से journey शुरू हो गई. तो हाजा हमें थोड़ा सा अपने initial experience के बारे में बताइएगा क्योंकि अब OT की awareness तो obviously आ ही रही है but still there's काफी explaining आपको करनी पड़ती है. You have to tell people what OT is exactly. Yeah. So basically when I was in first year, so I just got into new जितना आप Google कर लेते हैं क्योंकि second year में जाके आपकी rotation start होती है. तो used to ask seniors के OT क्या है, हम इसमें क्या करते हैं. Then आहिस्ता आहिस्ता जो है खुद interest develop होना शुरू हुआ. जब खुद समझ आई तो people randomly started asking के OT क्या होती है. So I had to explain कि OT जो है वो word occupation therapy word itself एक occupation से मिला है. तो आपकी जो भी ऑक्यूपेशन है दिन भर में जो भी आप काम करते हैं आपका खाना आपका पीना whatever you are doing even if you are picking up a glass of water this is a human occupation हमारे लिए सिर्फ काम नहीं होता even activities of daily living आपकी occupation होती है
तो ये चीजें जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो काफी तरह लोगों को समझ आती है. स्टिल दे कंफ्यूज इट विद फिजियोथेरेपी. देन आई हैड टू एक्सप्लेन कि फिजियोथेरेपी जो है वो आप कह रहे हैं कि वो ग्रॉस मोटर्स में है, तो हम फाइन मोटर्स या हैंड्स में हम ज्यादा, आप हमें हैंड स्पेशलिस्ट कह सकते हैं कि हमारी फाइन मोटर एक्टिविटीज में हम या उन चीजों में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं. इसके अलावा हम सेंसरी प्रोसेसिंग में करते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, साइको सोशल स्किल्स में. ग्रॉस मोटर्स भी हमारा एरिया है और फाइन मोटर तो हम हैं ही उसके एक्सपर्ट. सो दिस इज व्हाट ओटी इज ऑल अबाउट. और इस सब में अगर आपको कोई भी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कोई इशू होता है, इसके अलावा एक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स. इफ यू हैव हर्ड अबाउट, जिसमें जो ऑफिस वाले लोग होते हैं फॉर एग्जांपल, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, जिसमें घर में फॉर एग्जांपल इफ यू समबडी गॉट स्ट्रोक, तो वो हम कोशिश तो करते हैं कि एक पर्सन इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल देयर इज सम काइंड ऑफ एडिशनल नीड्स दे स्टिल रिक्वायर, तो उसमें हम जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े. तो आपका घर की अडेप्टेबिलिटी, आपके घर का स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं. Okay. So that you could be more and more independent into it. So this is all about OT. है तो बहुत बड़ी फील्ड, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको कंसाइज करके बता सकूं. What is it? So this is it. और जब से I got to know, तो हर रोज इसको एक्सप्लोर करना ही बहुत अच्छा लगता है. Definitely, and like you have to keep on learning, right? You can't just like stop. आपने अपनी जो है ना obviously knowledge base में continually increase करना होता है. आपका हर क्लाइंट, नहीं आप कह रही थी आपका हर क्लाइंट आपका टीचर होता है. यू आर ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम इट. आपका हर क्लाइंट आपका टीचर होता है, आपको हर चीज वो ही सिखा रहा होता है. इट्स नॉट लाइक कि वो रूटीन बन गई. इवन इफ यू आर गोइंग विद द सेम डायग्नोसिस, आई बिलीव इट के हर क्लाइंट आपका टीचर है. Definitely. अच्छा हाजा, आपने like you're currently working in the pediatric area. So, like, you wanted to always work with kids, or have you worked with adults as well? I work with adults through, you can say, clinical rotation, but I'm more into the pediatric because I think I love, you know, sometimes आपकी personality का या आपकी nature का part होता है. So I am more into being kids, and I get, मतलब मुझे लगता है कि I can understand the psychology more, and I can get to understand them more. So मुझे हमेशा से pediatrics में बहुत interest था. So I got into it. And till that day, मुझे अपना decision अच्छा लगता है. We're just gonna take a comment. So Kainat Munir is saying, in KPK we are facing awareness problems because I am now in 6th semester, the first ever batch in KPK we have. Hajra, any word of advice for Kainat? Don't worry. When we were like graduating, तो हमें हर रोज लगता था कि when we'll go in the market, when we'll be the professionals, who will know what is OT? But ever since I've got graduated, I feel lucky कि I've been an OT because जिनको आपका पता है आपको उन्हें बताना नहीं पड़ता है. And you don't worry, आपके पास एक skill है, and that skill जो है, कोई भी skill आप learn करें वो ऐसे नहीं जाता है. When you'll be a professional, you'll be proud of it, and you'll forget कौन जानता है कौन नहीं जानता. लोग आपसे खुद आके पूछेंगे what OT is. So I think this is. जैसे कि आपने कहा कि उससे आपको जो स्केल था, तो आपको भी like you can do volunteership. क्या? What I did is कि I started doing volunteer like in being an intern in different clinics and all that. So थोड़ा because I used to ask teachers, मैं उनसे हेल्प लेती थी and all that. So आहिस्ता they used to ask, अच्छा OT में ये होता है. आहिस्ता फिजियोस के क्लाइंट्स उस तरह हमने जो है डिवाइड करना शुरू कर दिया. मुझे भी मिलना शुरू हो गए. तो if you want to create awareness in your area, आप different clinics में जाके, different schools में जाके आप internship करें, उनको बताएं कि what is OT, और इस तरह आहिस्ता लोग आपको खुद रिगार्ड करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, कई दफा लोग OT और कायनात या all the best. तो मैं कह रही थी कि OT एंड फिजियो में भी कई दफा जैसे कि आपने कहा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो why do you think that is? मतलब क्या बहुत बेसिकली आई थिंक क्योंकि हमारा एरिया इंटरमिंगल कर जाता है, बिकॉज वो भी मस्कुलर एरिया में डील करते हैं. वी आल्सो डील इट समहाउ. तो उस वजह से जो है ऐसा हो जाता है कि बेसिकली हमें आपस में आप कह सकते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या दे स्टार्ट
थिंकिंग के पीटी और ओटी सेम है, बट जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी काम करते हैं तो पीपल गेट टू नो कि पीटी और ओटी के बीच में एक डिवाइडेड लाइंस हैं एंड दे गेट टू नो यू अबाउट। बट ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली भी अगर आप स्क्रॉल करें डिफरेंट ग्रुप्स को तो देर सेइंग के डिफरेंट जो है पोस्ट होती है कि आई ट्रीटेड अ क्लाइंट एंड दे सेड थैंक यू पीटी एंड दे आर सेइंग ओह माय गॉड आई एम एन ओटी। सो बिकॉज थोड़ा हमारी फील्ड आपस में इंटरमिंगल कर जाती है इस वजह से भी, और दूसरा ये कि पीटी जो है वो उसकी स्टडीज इनिशियली जल्दी स्टार्ट हुई थी एज कम्पेयर टू ओटी। पाकिस्तान में भी पीटी पहले आया था, सो देयर वर थिंग्स जो पीटी भी ओटी, बिकॉज अगर आपके पास एक एरिया लैग कर रहा है तो उस एरिया को किसी ने तो कवर करना है, तो पीटी भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा वो वाला एरिया को कवर करते थे। तो इस वजह से लोगों को इस वजह से अवेयरनेस नहीं है कि हैंड मूवमेंट में जो है या आपकी जहाँ फाइन मोटर्स आते हैं वहाँ पे ओटी काम करता है। सो ये है कि अगर पीटी उसको स्ट्रेंथनिंग कर रहा है या उनकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज कर रहा है तो ओटी उसको फंक्शनैलिटी की तरफ ला रहा है थ्रू एक्टिविटीज। तो चीजें फिर भी इंटरमिंगल कर जाती हैं। और दूसरा ये कि पीटी पहले आया है, सो दिस इज द रीजन आई थिंक लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, so we're just going to take another comment. Khatija Shakil is asking, how can I improve my daughter's pencil grip at home during quarantine? Pencil grip, there are a few things that I wanted to know about the pencil grip. Like if she thinks के एक तो ये हो सकता है kinesthetically के उसका जो है प्रेशर वो प्रॉपर ना लगा रही हो, आई एम नॉट गेटिंग उसकी ग्रास्प प्रॉपर है। अगर ग्रिप की बात है तो उसके लिए हम डिफरेंट वेट बेरिंग एक्टिविटीज, रोज एक्टिविटीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप व्हील बैरो कर सकती हैं। उसके व्हील बैरो में बेसिकली आप ये होता है, अगर आपने होम में करना है तो आप बच्चे के हैंड्स फ्लोर पे रखते हैं और उसकी जो लेग्स हैं पीछे से अपवर्ड कर लेते हैं एंड देन यू विल मेक देम वॉक। उससे एक तो ये होता है कि आपके हैंड्स पे प्रेशर पड़ता है, डीप प्रेशर, जिसकी वजह से बच्चों को अपनी सेल्फ अवेयरनेस आती है, प्रोप्रियोसेप्शन की अंडरस्टैंडिंग होती है। प्रोप्रियोसेप्शन इज अवेयरनेस ऑफ इट्स सेल्फ। इसके अलावा आप बच्चे के साथ ये कर सकते हैं कि आप पट्टी ले लें, या अगर आपके पास घर में प्लेडो है या आप ऐसा कर लें कि किसी आटे में कुछ बीड्स छोटे छोटे डाल लें और उसको जो है बच्चे से कहीं कि उसको पिक आउट कर लें, वो कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे से आप बीडिंग लेसिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेडो लेके उसके ऊपर स्नेक्स बना लें डिफरेंट शेप्स। उसके साथ स्नेक के ऊपर आप जैसे कहते हैं स्पाइक्स बना ली, बच्चों के लिए फन एक्टिविटी भी हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको थ्रू प्रेशर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे वो अपनी पेंसिल ग्रिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा पेंसिल पकड़ता है और वो लाइट प्रेशर डाल रहा है तो आप उसको थोड़ी सी असिस्टेंस भी दे सकते हैं कि आप अपना हाथ उसके साथ रख लें। और अगर आपको लग रहा है कि आप, और दूसरा ये कि आप मोटी पेंसिल यूज करें जो ट्राइका की होती है ना। एक तो पेरेंट्स जो होते हैं वो पतली पेंसिल यूज करते हैं जो कि थोड़ी कम वेट की होती है, आप थोड़ी ब्रॉड वेट की यूज कर सकते हैं जिससे आप कलर करा सकते हैं। पेरेंट्स कुछ ओटीज जो हैं वो ग्रिपर्स रिकमेंड करते हैं, बट पर्सनली आई फील लाइक कि आप पेंसिल की विड्थ इंक्रीज करने कोशिश करें कि बच्चा ग्रिपर्स की जगह ज़्यादा पेंसिल को ही अडेप्ट करके उसी से स्क्रिबल करे। और शुरू में बच्चे को बड़ा सा वाइट चार्ट पेपर दे दें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो स्क्रिबल करे ताकि उसका हाथ खुले आहिस्ता आहिस्ता। उसमें अगर आपको अपनी असिस्टेंस की ज़रूरत है, खुद अपने हाथ से प्रेशर लगाना है, वो कर सकते हैं। और इसी तरह की हैंड पेंटिंग करवा लें, एनिमल वॉक्स करवा लें। थ्रू इट जो है आप इसकी पेंसिल ग्रिप को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक क्वारंटीन इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, आपने ग्रिपर्स की बात की कि मतलब बैठे यही है कि आप विड्थ इंक्रीज कर लें ग्रिपर्स यूज करने के बजाय। सो इफ यू आर आई वांट टू नो द रीजन, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग विद ग्रिपर्स तो क्या ग्रिपर्स को क्या कहना चाहिए, रिमूव करना इज दैट डिफिकल्ट? इस वजह से मतलब आपकी डेफिनेटली, बिकॉज फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको रिमूव करना पड़ता है। एक चीज के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है। इन माय एक्सपीरियंस मैं बच्चों को पहले ग्रिपर्स देती थी, बट देन आई जस्ट गॉट टू लर्न कि अगर आप बच्चे को फ्री हैंड दें या आप उसको मैनुअली खुद अपने आप को एक्सप्लोर करने दें तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ज़्यादा अच्छा लर्न करता है, जबकि वो ग्रिपर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ती है। सो आई ऑलवेज यूज कि मैं ट्रायंगुलर शेप की लार्जर विड्थ की पेंसिल यूज कर लूँ, बिकॉज ग्रिपर्स भी बेसिकली विड्थ इंक्रीज करते हैं या वो एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो जब आप ट्रायंगुलर पेंसिल यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको एक फिंगर की और एक थंब की स्पेस देता है। सो इट्स मोर लाइक अ ग्रिपर पेंसिल हो जाती है। तो इट्स बेटर अगर आपको फिर भी लगे तो आप ग्रिपर यूज करें, बट इट्स ऑलवेज माय लास्ट चॉइस कि आप ग्रिपर की तरफ आए। ठीक है, ठीक है। We have another question. Humar Arshad is asking, can OT help in toilet training?
OT can help in toilet training, but it should be combined with a behavioral therapist, because I believe कि multidisciplinary हमेशा results जो है best आते हैं. In my experience, I've always worked with an behavior therapist for that, because उसमें what I used to do is कि हम visual schedule दे देते हैं बच्चे को. It all depends on its age. Basically, I start like 5 onwards. एंड उसमें ये कि हम विजुअल स्केड्यूल होता है बच्चे का, उसके साथ हम सोशल स्टोरीज होती हैं, और साथ में जो है एक बिहेवियर थेरेपिस्ट का जो इनपुट है, बिकॉज समटाइम्स बच्चे की एंजाइटी होती है, पेरेंट्स ने इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट कर दिया होता है बच्चे को कि नो यू हैव टू सिट ओवर देयर एंड ऑल दैट. सो आई बिलीव इट्स बेटर कि बिहेवियर थेरेपिस्ट और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो मिलकर इस चीज के ऊपर काम करें. ठीक है. अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि 5+, so that's the age you feel कि तब start करनी चाहिए toilet cleaning. This is basically this is the research that had been according to it कि बच्चे को आप onward 5 जो है उसके साथ toilet training start करें. Before that आप बच्चे को जो है थोड़ा anxiety और stress में भी जो है उसके chances ज़्यादा हो जाते हैं. So बच्चे की better understanding हो जाती है, cognitive development ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाती है. Even if in Pakistan you will see कि बच्चे 2 years में train होना शुरू हो जाते हैं. अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को issue हो रहे हैं और थोड़ा सा बच्चा इशू कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा टाइम और स्पेस दें. सो वी जस्ट स्टार्ट ऑन लाइक हम 5 year ऑनवर्ड जो है, ज्यादातर पेरेंट्स भी हमारे पास जब तक आते हैं तो वो 5 ऑनवर्ड होता है, बिकॉज उस टाइम तक बच्चे को विजुअल स्केड्यूल की भी अंडरस्टैंडिंग होती है या सोशल स्टोरी की भी वो अंडरस्टैंडिंग बेटर कर पाता है, उसको समझ आती है कि व्हाट आर वी डिमांडिंग फ्रॉम हिम और हर. ठीक है, ठीक है. So Usama Anwar is asking, any treatment for mouthing? Mouthing is basically what I say. It's basically you can say a natural phenomena. Like if you see, आप एक 3 महीने के बच्चे को देखेंगे तो आप देखेंगे वो मुंह में उंगलियां डाल रहा होता है. This is basically उसकी अपनी oral exploration होती है. वो अपने आप को अपनी body awareness ले रहा होता है, अपनी orally अपने आप को explore करता है. फिर जब टीथिंग आती है तो आप देखते हैं बच्चे जो है वो बाइट करना स्टार्ट करते हैं जब पेरेंट्स उनको रोक रहे होते हैं. बेसिकली उस टाइम पे वो अपनी जॉ मूवमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. इसी तरह जब बच्चा आप देखिए 9 months से बच्चा अगर आप स्टैंडिंग की तरफ आए, 6 months से ऑनवर्ड क्रॉलिंग करना शुरू हो जाते हैं. आप देखेंगे क्रॉल करता हुआ बच्चा अपने मुंह में चीजें डाल रहा होता है और अक्सर. सो ये चीज तब इनिशिएटिव खत्म होती है जब 2.5 से ऑनवर्ड आप जाते हैं, जब बच्चा अपने आप को अपने इर्द गिर्द बच्चों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, प्ले जाना शुरू हो जाता है. अगर 2.5 से आगे ऑनवर्ड माउथिंग होती है तो इट्स गेट वरीसम. इसमें ये हो सकता है कि बच्चे के लिए सेंसरी तौर पे वो अपने आप को ओरली एक्सप्लोर कर रहा हो. एक तो ये पॉइंट हो सकता है कि उसको बचपन में वो अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो, उसको टीचर ना मिला हो, उसने उस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर ना किया हो. सो व्हाट वी कैन डू इज, या फिर ये हो सकता है कि वो अपने आप को सेंसरी उसको इश्यूज हो रहे हो, वो प्रोप्रियोसेप्टिवली अपनी जॉज की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना चाह रहा हो, प्रेशर्स लेना चाह रहा हो. इसके लिए व्हाट आई रिकमेंड इज, क्या रिकमेंड कि हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप क्रंची फूड दें. फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया जिसमें ज्यादा आपको प्रेशर लगे, फॉर एग्जाम्पल क्रंच करने में अगर आपकी जॉज को प्रेशर लगेगा तो आपको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलेगा. दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. सॉरी. इसके अलावा आप गम मसाज दे सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी आई एम गोइंग टू शो यू. बेसिकली हम देते तो इसको इंटरनली है, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे जो है ना इंटरनली, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अ फिंगर इनसाइड तो वो घबरा जाते हैं. सो आई रिकमेंड कि आप इंटरनली से पहले एक्सटर्नली स्टार्ट करें. फॉर एग्जांपल यू गो लाइक दिस एंड यू गो ओवर देयर. इतना प्रेशर होना चाहिए कि इतना भी नहीं कि बच्चे को पेन हो, बट इतना कि बच्चा इस प्रेशर को फील कर सके. ज्यादा बच्चे के साथ ओरली प्ले करें, लाइक चीक्स के साथ, यूं उनके साथ चीक्स के साथ प्ले करें, इधर से लिप्स के साथ उनके साथ ओरली प्ले करें. उनको च्यू ट्यूब्स मेरी हमेशा से लास्ट ऑप्शन है, उससे पहले कि बच्चे के साथ ओरली आप प्ले करें. गम मसाजेस दें, चीक मसाज दें. उसके अलावा आप उसको एक्सक्यूज मी, Do you want to take a water break? आप उसके साथ, yeah, can I take it? हाँ, definitely. Why not? Sorry, basically मुझे वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है. नहीं, Haji, definitely. You can take a water break. So we'll just take a short break, and I don't know about you all, but I'm finding this discussion really engaging and informative. Saika Iqbal, you said nice ideas for gripping. Thank you so much for your comment.
सॉरी एक्चुअली No, it's no problem. अच्छा हम किधर थे, उसके अलावा जो है आई ऑलवेज रिकमेंड कि हम ZY ब्रश भी जो है पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं। उसके लिए ये होता है कि बच्चे शुरू में जो है वो उसको आप लिप्स पे दे दें और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अंदर जो है टंग पे उसको वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं। ZY भी एक्सपेंसिव होता है, तो जैसे कि हमारा टॉपिक है कि OT के ऊपर जो है कि ऑलवेज एक्सपेंसिव नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि मैं पेरेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि वो ZY ब्रश की जगह ओरल बी कटिंग ब्रश मिलता है इजीली मार्केट से, आप वो यूज कर सकते हैं। वो भी आपको ऑल्दो वो ZY तो नहीं है, लेकिन आप उसकी जगह जो है वाइब्रेटिंग जो है ओरल बी का वाइब्रेटिंग ब्रश यूज कर लें, वो भी आपको बहुत हद तक उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है। आई होप के माउथिंग के लिए अगर आप ये करेंगे तो बहुत वाइब्रेटिंग ब्रश से जरूरी है कि आप गम मसाजेस जो है ना उसकी इंटेंसिटी हर आवर के बाद आप बच्चे को जाते इर्द गिर्द उसकी चीक्स को करें और इस तरह करें तो काफी हद तक इट वुड बी बेटर। और ट्यूब इज ऑलवेज माय लास्ट ऑप्शन। Why is that वैसे? ट्यूब्स का क्यों आपको लगता है कि that should start late? ट्यूब इसलिए मेरी लास्ट ऑप्शन थी बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय एक्सपीरियंस, जब मैंने स्टार्टेड इनिशियली बीइंग अ पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्टार्ट किया, तो आई जस्ट गॉट टू न्यू अबाउट अ किड, मुझे उसकी एज याद है, ही वाज अ 12-year-old किड। तो वो जब मुझे फर्स्ट टाइम ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर थेरेपिस्ट टू मी, तो जब मैंने उसको देखा तो ही वाज सो ऑब्सेस्ड ऑफ ट्यूब कि ही यूज्ड टू ईट इट ऑल। लाइक वो उसके इतना ज्यादा उसको थ्रू आउट उसको अपने माउथ में रखता था, या उसकी माउथ की वजह से उसकी हैबिट बन चुकी थी। सो मदर टोल्ड मी कि हम हर वीक जो है उसकी एक न्यू ट्यूब ऑर्डर होती है। तो आई एक्सप्लोर कि बच्चे के साथ ऐसा क्या हो कि वो किसी चीज, फिर मुझे डिपेंडेंसी इज ऑलवेज द थिंग जो मुझे बड़ी अफेक्ट करती है। तो आई थॉट कि क्या ऐसी चीज होनी चाहिए, देन मसाजेस एंड ZY वर द रेस्क्यू। सो आई नेवर ट्राई कि मैं ट्यूब कभी भी करूँ, बिकॉज मैं आहिस्ता आहिस्ता की वाइब्रेटिंग ब्रश की भी इंटेंसिटी जैसे जैसे वो गम मसाजेस पे यूज टू होता है, मैं वाइब्रेटिंग ब्रश की भी इंटेंसिटी कम करती हूँ। ठीक है कि वो really खुद अपने आप को एक्सप्लोर करे। तो okay, I'm just gonna take another comment. Abdullah Ahmed is saying thank you for making our sorry I'm just gonna put it up. Thank you for making our quarantine informative. You are doing a great job. Thank you so much, Abdullah, for your comment. Binta Iqbal is asking, OT की किन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब autism, ADHD, speech delay, GDD, etc. मतलब basically I think she wants to know in which kids, how do you know they need the occupational therapy? OT is not only for additional need kids, OT हम typical बच्चों के लिए भी करते हैं। For example, आपकी स्कूल परफॉर्मेंस में इशू है, हैंड राइटिंग में इशू है, उसके लिए भी अगर बच्चों को थोड़ा सा बैलेंस में इशू हो रहा है या उस चीज के लिए भी हम यूज करते हैं। बट बेसिकली अगर आप पीडियाट्रिक में चले जाएं तो दो मेजर काइंड्स हैं जिसमें ज्यादातर OT आपको काम करते नजर आएंगे। आई वोंट से कि वो मेजर काइंड है, बट काम करते नजर आएंगे। एक आप चले जाएं CP वाले एरिया में आ जाते हैं मोटर इश्यूज में, और एक आपको सेंसरी में ऑटिज्म, ADHD, न्यूरो डेवलपमेंटल में मिल जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी ऑटिज्म, ADHD, अटेंशन कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, इनमें जो इश्यूज होते हैं। बट आई स्टिल से कि OT जो है इट्स नॉट ओनली फॉर ऑटिज्म, इट्स फॉर अगर आपके बच्चे में किसी भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि उसके माइलस्टोन को, डेवलपमेंटल माइलस्टोन में इशू आ रहा है, तो आप OT को जरूर कॉन्टेक्ट करें, they'll help you with it. So I don't understand कि वो actually पूछना क्या चाह रही थी। हाँ नहीं, मोस्टली एक्चुअली वो हम स्टार्ट कर रहे थे ना, शुरू में जब हम बात कर रहे थे कि OT के बारे में काफी कंफ्यूजन्स हैं। तो ये भी एक होता है कि OT क्या सिर्फ टिपिकल बच्चों के लिए या एटिपिकल बच्चों के लिए, ये कंफ्यूजन भी अभी तक क्या कहते हैं या they're still there. तो वो इसी हिसाब से पूछना चाह रही थी फ्रॉम व्हाट आई गैदर्ड कि OT किन बच्चों को ज्यादा चाहिए होती है। बट एज यू पॉइंटेड आउट, देयर नॉट ओनली फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, बल्कि टिपिकल बच्चे भी दे कैन बेनिफिट अ लॉट विद OT। टिपिकल बच्चे, ठीक है। So I think I asked the question, but I forgot about it. So this is gonna go to the next. You were talking about early. Yeah, early intervention. Sorry. So you were saying early intervention. Early intervention, exactly. Early intervention भी काफी जरूरी होती है। So when we say early intervention, what is the like age? किस age की हम बात कर रहे हैं? Initial जो minimum age होनी चाहिए? Yeah.
अर्ली इंटरवेंशन इज अबाउट कि आपकी कितनी अर्ली आप ट्रीटमेंट के लिए आते हैं. इट्स लाइक कि मैं तो कहूँगी एज सून एज पॉसिबल. जब आपको रेड फ्लैग्स, आपको किसी भी चीज का कोई इशू है तो आप जरूर, वाई टू वेट व्हेन यू हैव थेरेपिस्ट इन द मार्केट, या आपके पास थेरेपिस्ट है तो वाई टू वेट फॉर, यू जस्ट आप उनका रिव्यू ले लें. सो एज सून एज पॉसिबल आपको लगता है कि कोई इशू है, आप उसको कांटेक्ट बैक करें. इफ आई रिकॉल, आई जस्ट हैड अ क्लाइंट दैट वाज 1.8 years. सो पेरेंट्स सेड कि हमें लगता है कि इसकी इतनी अटेंशन, कंसंट्रेशन या प्ले में उस तरह इन्वॉल्व नहीं होता जैसे इसके पियर्स होते हैं. सो अगर एक 1.8 year, सो बेसिकली हमारे पास अर्ली इंटरवेंशन में बच्चे 2 years या 3 years से अबव आते हैं. लेकिन आइडियली आई फील लाइक अगर 1.8 और 2 में आ जाए, जब आपको फील हो बच्चे कि उसमें उस चीज में आपको इश्यूज आ रहे हैं, फीलिंग आ रही है, तो आप जरूर आए. इट्स अबाउट ऑटिज्म. और अगर सीपी अगर बच्चा अर्ली डायग्नोज हो गया तो उसमें तो आपको पता है कि 3 months में नेक होल्डिंग होती है. तो उसमें अगर बाय 3 months बच्चे की नेक होल्डिंग नहीं है तो आपको पहले ही स्टार्ट करा देना चाहिए. तो इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है. एज सून एज पॉसिबल आपको कोई भी रेड फ्लैग, कोई भी साइन मिलता है, यू शुड कम टू ओटी या किसी भी थेरेपिस्ट के पास जिस डोमेन में भी आपको इशू फील हो. Okay. So, Rajat Prasad is saying very informative session. We have thank you for your comment. Shaz is also saying very informative. Thank you for your comment. Tahreem Khan is saying your way of explaining is so convincing. Many people will benefit from your live session. Thank you for your comment, Tahreem. Amjad Ali is asking, if one class student write 359 upside down, how to manage? Okay, so this could be something that is going to towards visual perception. So visual perception itself is a very large domain. अगर हम उसके अंदर बात करें तो उसमें बहुत सारी kinds आ जाती हैं. उसमें हमारे पास विजुअल डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है. मैं आई एक्सप्लेन दैम, मैं उनको सिर्फ मेंशन कर दूं. विजुअल मेमोरी आ जाती है, विजुअल अटेंशन आ जाती है, और विजुअल इमेजरी आती है. अगर हम सबसे पहले बात करें विजुअल अटेंशन की, तो बच्चा कितना अटेंशन देता है. अगर फॉर एग्जांपल एक बोर्ड ऑफ पिक्चर है तो उसमें से वो आपको बता सकते हैं ये एप्पल है, ये क्या चीजें हैं, इस तरह की बात आ जाती है. विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में हम फॉर्म कंसिस्टेंसी पे चलते हैं. तो अगर एक सर्कल एक पेपर में है या एक बॉल बनी हुई है, और अगर आप उसको जनरलाइज कर सके कि एनवायरमेंट में ऐसी है, यही चीज जो पेपर पे बनी है यही आपको जनरल एनवायरमेंट में भी मिल रही है. फिर आप आ जाते हैं कि आपको फिगर ग्राउंड से बहुत बड़ी पिक्चर में से एक चीज को ढूंढ के डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. इसी तरह जब आपकी फॉर्म कॉन्स्टेंसी में इशू होते हैं तो बच्चे ज्यादातर अपनी स्पेलिंग्स के मिस्टेक्स को नहीं फाइंड आउट कर पाते. उनको रीडिंग राइटिंग स्किल्स में जो इशू होता है. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 3, 5 और 9 को अपसाइड डाउन लिखते हैं. इसी तरह उसकी स्पेटियल अवेयरनेस के वो उस चीज के अंदर स्पेस में उसको ओरिएंटेशन समझ आ रही है या नहीं आ रही है. उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे की विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स पे काम करते हैं. उसमें हम ये करते हैं कि अगर आप ऑडिटरी विजुअल क्यूज देना, वर्बल क्यूज देते हैं बच्चे को राइटिंग के लिए, प्रॉपर जो है आप उसके साथ स्टार्ट ये कर सकते हैं. ऑडिटरी वर्बल क्यूज के अलावा आप उसको फॉर एग्जांपल आप उसके साथ एक डिफरेंट एक्टिविटी स्टार्ट कराएं. आप उसको थेरापी दे दें और थेरापी से कहें लेट्स मेक अ 3, लेट्स मेक अ 5, या उसका कोई फेवरेट पडिंग हो सकती है, कोई चॉकलेट पडिंग जो उसको पसंद है, यू विल मेक 3 विद इट, और उसको कहे ओके देन आफ्टर दैट वी ईट इट आउट. तो बच्चों को एंजॉय भी करते हैं. या छोटी गर्ल्स हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि लेट्स डेकोरेट 3 विद बीड्स. इस तरह बच्चों की जो आप कह सकते हैं कि जो पार्ट डेवलपमेंट है, पूरी लेटर की फॉर्मेशन है, वो बार बार रिवाइज होगी, तो दे विल गेट लर्न मोर अबाउट इट. इस तरह आप उनके साथ कर सकते हैं. सो दीज थिंग विल हेल्प. इसके अलावा हिडन पिक्चर्स आप दे सकते हैं कि वो फाइंड आउट करें, आप डॉट टू डॉट एक्टिविटीज कराएं, ताकि एक तो उनके विजुअल परसेप्शन स्किल्स इंप्रूव हो, और साथ साथ जो आपको लग रहा है कि आपको उनको रीइंफोर्स करने हैं 3, 5 और 9 को, तो वो आप पट्टीज और डिफरेंट चीजों को लेके, शेविंग फोम को लेके, अगर उनको मेसी प्ले पसंद है, हैंड पेंट के साथ. जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को पहले पेंसिल से ही काम कराएं. शुरू में आप उनकी फन एक्टिविटी करके उनको पहले लर्न करवाएं और फिर उनको पेपर और पेंसिल की तरफ लेकर आएं. इट विल हेल्प देम अ लॉट. ठीक है. So, कायनात मुनीर is asking, occupational therapy में कौन से एरियाज की हम ऑनलाइन थेरेपीज कर सकते हैं, मीनिंग के पेशेंट्स को क्लिनिक या हॉस्पिटल्स ना जाना पड़े. I think this also relates to our like original topic कि does OT need to be expensive or not, या मतलब घर में भी किया जा सकता है.
क्योंकि जब भी ओटी की बात होती है ना, यूजुअली व्हाट यू हियर इज कि इट्स रियली एक्सपेंसिव। तो हाँ, जो आपकी क्या कमेंट्स हैं इस बारे में? But I'll tell you, it's not that expensive. बेसिकली ओटी में अगर इस एरिया वाली बात तो मैं करती हूँ, पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ कि Yeah. ओटी को एक्सपेंसिव नहीं भी होता भी है एक्सपेंसिव, और नहीं भी हो सकता अगर आपकी एक्टिविटीज गोल ओरिएंटेड है और अगर उनका पर्पस है। तो आप कोई भी घर में डीआईवाई जो है रिसाइकल चीजों को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हर घर में एक स्प्रे गन होगी, ठीक है। Yeah. आप उसको यूज कर सकते हैं, बच्चे स्प्रे गन्स के थ्रू अपनी फिंगर की, फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने मुझसे पूछा था पेंसिल ग्रिप के लिए क्या एक्टिविटी है, तो आप स्प्रे Exactly. गन से बच्चों के साथ फन में खेलें तो उनकी फिंगर मूव में होगी, फिंगर स्ट्रेंथनिंग भी होगी। इसी तरह आप उनकी टारगेटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, टिश्यू रोल्स ले लें, उसके ऊपर कोई भी फोम रख लें या कोई आप बॉल रख लें, उसके ऊपर आप उनसे कहीं टारगेट करें बॉल से। तो दीज आर द थिंग्स, एक्टिविटीज गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। और ओटी में वरना अगर आप फॉलो अप्स करने के लिए विलिंग हैं तो आप बहुत ज़्यादा होम बेस्ड चीज़ों से भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब मैं उनके एरियाज वाली बात पे चलती हूँ। तो एरिया में ये आते हैं कि अगर पीडियाट्रिक में चलें तो पेरेंट्स, इसमें तो मैं कहूँगी पेरेंट्स के विल पावर पे बड़ा डिपेंड करता है, इफ़ दे आर रेडी कि वो फॉलो अप्स कर सकें जैसा उनका थेरेपिस्ट उनको एक प्लान देता है। बिकॉज आप किसी भी थेरेपी की डोमेन उठा लें ओटी के अलावा, दिस इज द अल्टीमेट रिसर्च कि 80% बच्चे की प्रोग्रेस तब होती है जब पेरेंट्स उसके साथ फॉलो अप करते हैं। जो भी थेरेपिस्ट, अगर आप कितना ले लेंगे, वीक में ट्राई सेशन ले लेंगे, जब तक आप उसका बेटर फॉलो अप घर में वो रिवाइज नहीं होगा, जब तक आप उसका फॉलो अप नहीं करेंगे, तब तक आपको बच्चे में इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगी। और जहां तक मुझे लगता है कि हर थेरेपिस्ट का जो प्लान होता है वो ऐसा होता है कि वो होम प्लान भी देता है। हर एरिया के अंदर कहीं ना कहीं होता है अल्टीमेटली कि वो आईसीयू और इमरजेंसी में जो करते हैं रिलेटिव्स। तो आप Definitely. अगर वो चीजें घर में फॉलो अप कर रहे हैं तो आप, और थेरेपिस्ट के साथ आप वीकली उस चीज को करें, तो बहुत ज्यादा है कि आप जो है उसको घर पे कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये बात आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसकी टेंशन कंसेंट्रेशन जो है स्क्रीन टाइम पे ज्यादा नहीं है, बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये वो बच्चा घर में आप डील ही ना कर सकें। आप थेरेपिस्ट से लें उसके, अगर भी आई एम अ थेरेपिस्ट, मैं उनको ऐसी शॉर्ट एक्टिविटीज बताऊंगी जो बच्चे के इंटरेस्ट के लिए भी होंगी और वो उससे जो है उसको थेरेप्यूटिकली भी उसके लिए हेल्पफुल होंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो घर पे हो सकती है। सो आई फील लाइक कि हर एरिया जो है घर में एप्लीकेबल है अंटिल एंलेस यू आर रेडी फॉर द फॉलो अप, कि आप उसकी फॉलो अप थेरेपिस्ट Exactly. के साथ वीकली करें और डेली आप जो उसको घर में प्रैक्टिस करें। तो आई थिंक हर एरिया जो है प्रैक्टिस हो सकता है। हाँ, नहीं वो आपने बिल्कुल, सॉरी जस्ट पुट दिस अप अगेन, गलती से। सो जैसे कि आपने कहा ना कि मेन बात वही है कि पेरेंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल कि जी आपको प्रोग्रेस नजर आए। So Huma is asking, what has been your most Therapist is challenging? just like Yeah. a challenging case. I take every case of mine as challenging. मुझे होता है कि अब ये मेरे पास आ गया है, so बस now I have to, जो मैंने इसके लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो मैंने सोच लिया है कि मैंने इसको जिस पॉइंट पे लेके जाना है, इज इट हैपनिंग और नॉट, आई एम गोइंग टू टेक इट। सो ये है कि मैं हर अपने क्लाइंट के लिए चैलेंजिंग नहीं भी हो तो सोच लेती हूँ और उसको चैलेंज करके ही करती हूँ कि आई हैव टू डू इट, और जो मैंने अपना लॉन्ग टर्म गोल रखा होता है उसको मिनिमली जो है करके देखे चलती हूँ। अच्छा, हाँ, तो इसी से वैसे एक मेरे पास और क्वेश्चन आया कि अक्सर मतलब ऑब्वियसली एक गेम प्लान हमारे एज थेरेपिस्ट हमारे जहन में होता है, राइट? कि this is where we want कि we see the potential and we want the child to reach here, right? But sometimes due to whatever conditions that does not happen. So I suppose I want to ask कि थेरेपिस्ट भी सुन रहे हैं, how do you deal with that? मतलब कई दफा आपको भी you take it to heart, right? कि maybe I haven't done enough, Yeah, maybe I haven't helped enough. So I suppose what I'm trying to ask here is कि क्या advice आप थेरेपिस्ट ये को ना आई देंगे? गॉट योर पॉइंट कि एक जगह Yeah, बच्चे का स्टक हो जाता है। exactly. अच्छा, दिस इज देयर हैड बीन थिंग विद मी, मेरे साथ भी तो दफा ऐसा हुआ। आई जस्ट गॉट के अच्छा नाउ व्हाट टू डू। सो इसके लिए मुझे एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि आई व्हाट आई लर्न थ्रू माय एक्सपीरियंस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इट हेल्प मी अ लॉट। और मेरा ये होता था
कि वट एवर जो क्लाइंट का केस, और अगर हम 3 लोग लाइक स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इकट्ठे ले रहे हैं, तो यूज टू लाइक हम वो क्या कहते हैं ना, सर जोड़ के बैठ जाते थे कि अच्छा आपके सेशन में ऐसे जा रहे हैं, आप में ऐसे जा रहे हैं, आप में ऐसे जा रहे हैं ना, व्हाट टू डू। सो हम एक दूसरे से आइडियाज कलेक्ट कर रहे होते थे। अच्छा नाउ स्पीच वाज टेलिंग मी कि आप अपनी जब ओटी एक्टिविटी में इस तरह इनकॉर्पोरेट करना, तो उसको वर्बल क्यू ऐसे देना कि वो इमिटेट करेगा। सो मैं उसको ओटी के बारे में आई वाज टेलिंग कि अच्छा आप ये टिप यूज कर सकते हो, तो इट विल हेल्प अस। एंड आई हैड अ केस एंड यू कुडंट बिलीव कि इट हैड बीन स्टक फॉर लाइक 1.5 month, और हम तीनों ऐसे थे कि नाउ व्हाट टू डू। सो हमने स्ट्रेटेजीज हम 3 days के बाद अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करते थे, एंड फाइनली वी वर सो ग्लैड। बल्कि कल ही हमारी पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही थी, एंड वी वर टेलिंग के माशाल्लाह ही हैड जंप फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर। और उसका जो मुझे लगता है कि प्राइस जाता है वो यही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत हेल्पफुल है। अगर आपका बच्चा कहीं स्टक कर गया, आप अकेले थेरेपिस्ट कभी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि एक साइकोलॉजिस्ट, एक स्पीच थेरेपिस्ट और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मिलकर जो है तीनों डोमेन्स इकट्ठी मिलकर काम ना करें। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल टू चाइल्ड। Hira Zain is asking, I want to know how to improve handwriting. Handwriting is I just wanted to know what kind of handwriting, but we'll say कि handwriting में फिर 2 चीजें आ जाती है। handwriting का जो basic concept है वो ये है कि वो visual motor integration है। एक तो visual motor integration क्या होती है, basically आप ये कह लें कि आपके मोटर रिस्पॉन्सेज तो हैं ही हैं, आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आपका विजुअल परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें जो है ना इसकी बेस लाई डाउन करती हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन से इज के हैंड राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में ये होता है कि आपके जो मिनी मस्कुलेचर्स होते हैं, हैंड के मसल्स, आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आपकी विजुअल परसेप्शन, ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर अ गुड इम्प्रूव्ड हैंड राइटिंग। अब फॉर दैट के अब हैंड राइटिंग के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। उसमें लेटर फॉर्मेशन आ जाती है, उसमें अलाइनमेंट आ जाती है, उसमें साइज आ जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है, स्पेसिंग आ जाती है। तो मैं जनरल सा व्यू दे देती हूँ कि इसमें से कोई भी इशू आता आप उसको बाद में हाईलाइट करके मुझे बता सकती हैं। अगर आपने लेटर फॉर्मेशन वाली बात की, तो वही जो मैंने अभी पहले बताया कि आप पट्टी से, प्ले फोम से, शेविंग फोम से जो है आप उनके साथ कर सकते हैं। वही सारे विजुअल परसेप्शन की टेक्निक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे की स्पेसिंग में है, तो प्रॉपर आपको पेपर यूज़ करना चाहिए जिसमें 4 लाइन पेपर होता है जो जनरली, वो कलर पेपर यूज़ कर लें जिसमें फर्स्ट ब्लू लाइन, देन you got स्काई लाइन, ग्रास लाइन एंड यू नो द सॉइल लाइन, ठीक है। तो उसमें आप बच्चों को लेटर फॉर्मेशन बता सकते हैं कि द ए कम्स ओनली इन द ग्रास लाइन, ठीक है। उससे आप बच्चे की अगर उसको लेटर फॉर्मेशन की आपने अंडरस्टैंडिंग देने के बाद आप उसको पेपर पे लेकर आ रहे हैं, तो उसको ये कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स करने के लिए, अगर आपने स्पेसिंग करनी है तो उसके लिए एडिसिव स्ट्रिप्स होती हैं जिसके थ्रू आप बच्चे की वर्ड्स की स्पेसिंग कर सकते हैं अच्छी सी, या फिर 1 फिंगर जो ब्लॉक राइटिंग करवा लें आप स्टार्टिंग में, इम्प्रूव अगर आपने उसकी हैंड राइटिंग करनी है। फिर गो स्टॉप मार्जिन वाले पेज मिलते हैं जिनको गो और स्टॉप का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर आपको लगता है बच्चा विजुअली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप बच्चे के पीछे ब्लैक पेज रखें, उसके ऊपर व्हाइट पेपर रखें, कॉन्ट्रास्ट बना दे, ताकि बच्चे को पता हो कि जब उसकी नजर पड़े तो क्वेश्चन को फौरन से उसकी नजर क्वेश्चन पे पड़े, बिकॉज इट वुड बी अ कंट्रास्टिंग पेपर। इसके अलावा आप स्लांट लाइक हॉरिजॉन्टल चीज पर जो है वो पेपर लगा सकते हैं। स्लांटिंग बोर्ड के साथ आप उसको हैंड राइटिंग कराएं, दैट इज गोइंग टू बी अ मोर स्टेबल पोजीशन होती है, उस पर आपके बच्चे की हैंड राइटिंग मोर इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा अगर आप आई थिंक सो मैंने एरिया जो है जनरली तो कवर कर दिया है, जैसे कोई और चीज है उन्होंने थोड़ा जनरल था तो आई ट्राई कि मैं उसको जनरली कवर कर दूं। लेकिन नहीं हाजा, उन्होंने अपनी नेक्स्ट कमेंट आफ्टर यू स्टार्टेड गिविंग योर आंसर, शी हैज आस्क्ड आई वांट टू नो अबाउट द साइज, माय डॉटर राइट्स टू लार्ज। अच्छा ओके, इफ यू वांट टू नो अबाउट द साइज, तो उसमें ब्लॉक पेजेस होते हैं जिसमें आप ब्लॉक से साथ स्टार्ट कर सकती हैं, या अगर आप 4 लाइन पेजेस के साथ भी स्टार्ट करिए तो इनिशियली आप प्रिंट करें उसको ऐसे कि आपकी जो 4 लाइन पेज है वो आपकी जो हमारी नॉर्मल राइटिंग है उससे थोड़े बड़े हों, बिकॉज बच्चे शुरू में आप अगर देखेंगे तो बड़ा लिखना आपको ईजी लगता है एज कम्पेयर टू जब आप छोटा लिखते हैं।
बड़े लाइंस लें और उसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट दें, स्काई लाइन, ग्रास लाइन, सॉइल लाइन पर आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पेज की जो लाइंस की विड्थ है उसको आप छोटे करते जाएं। और मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स है, उन्होंने अपने आप को पेंडेमिक में जो है फ्री किया हुआ है फॉर लाइक 3 months आई थिंक। सब तो लास्ट 15-20 डेज रह गए हैं। आपको हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स से बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज उसमें जो है वो प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है आप लर्न कर सकते हैं। उसमें आप अपने बच्चे की जो आपको लगता है जिस स्टेज पे आप उस पेपर को प्रिंट करें और आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। I'm just gonna take another comment. I'm really glad. I mean, this is becoming really engaging. So thank you so much, Harsha, because I'm also getting comments that the session is extremely informative and helpful. So this is going amazing. Thank you, Rida, for inviting. No, this is really great. Thank you for joining us. So Binte Iqbal ne, in her previous comment, she asked about the areas, right? इन्होंने पूछा था कि किन areas पे आप घर में काम कर सकते हैं. So in this comment, as she's saying, okay, thank you for answering the previous comment. I was asking for my 3.6 years old daughter. She is she's more picking one language, English, than the other, Urdu. अच्छा वो इंग्लिश ज़्यादा पिक कर रही है उर्दू से, और इंग्लिश में उर्दू बोलना नहीं पिक कर रही, इंग्लिश में कर लेगी. इसकी वजह क्या हो सकती है? अच्छा खैर, इसके लिए आई बिलीव लाइक एक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट या पैथोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। आई रेफर टू देम, बट आई सी कि बच्चे को जो है ना, आप मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल की जगह हम थेरेपी में व्हेनेवर अ क्लाइंट कम्स टू अस, हम पूछते हैं आप घर में क्या लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर आप उर्दू आपकी डोमिनेंट लैंग्वेज है या इंग्लिश है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं दे ऑलवेज से कि इंग्लिश है, बिकॉज हम बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। सो हम उस थेरेपी को इंग्लिश में ही कर रहे होते हैं। एंड आई हैड अ डिस्कशन विद स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट एज वेल। सो शी टोल्ड मी कि आप बच्चे को पहले एक लैंग्वेज में रखें। ऑल्दो पाकिस्तान में हम मल्टीलिंगुअल्स होते हैं, वी नो सिंधी, पंजाबी, हमारे बच्चे को हर लैंग्वेज आ रही होती है, लेकिन आप कोशिश करें कि बच्चे को, अब आपने एक एप्पल बता दिया, आपको जरूरी है कि उसको सेब भी बताएं, उसको पंजाबी में भी बताएं। आप एक लैंग्वेज को फोकस करें, उस चीज की वो बच्चा कॉन्सेप्ट ग्रैब करे, मेरे ख्याल से वो बेटर है। उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके सोशल स्किल्स और चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादातर पेरेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो घर में उर्दू बोलते हैं, बच्चे के साथ इंग्लिश बोलते हैं, एंड देन दे से कि बच्चा जो है इतना अच्छा रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है। तो आई फील लाइक जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं या जिस लैंग्वेज में आपका बच्चा कंफर्टेबल है, आप उसी लैंग्वेज को ही पिक करें। आप उसको बायलिंगुअल लैंग्वेज में कंफ्यूज मत करें। उसकी अर्ली स्टेजेस हैं, उसके पास और बहुत सी चीजें हैं, उसके प्ले स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका अपना एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने की स्टेज है। उसको हम इन छोटी छोटी चीजों में क्यों कंफ्यूज करें। सो स्टिल ये SLP की तरफ रेफर होता है, बट ये मेरा अपना ओपिनियन था जो कि आई जस्ट गिव इट आउट। बेसिकली मैंने अपना सिर्फ ओपिनियन दिया है, रेफरेंस तो ये SLP के लिए है। Exactly. So, Binte Iqbal, I hope your question has been answered, and definitely you should consult a speech and language pathologist for this. So, Homa is asking, what can I do to encourage my child to stop thumb sucking? I think ये फिर से वो उसी oral उसमें category में आता है. वो oral exploration है, and that is what आप crunchy food देते हैं आप, बट थंब सकिंग तो बच्चा करता है, इट्स लाइक अ नेचुरल फिनोमिना बन चुका है। सो आप सोशल स्टोरीज दे सकते हैं, अगर बच्चा आपको लग रहा है इट्स अ हैबिट, आप उसको स्टोरी के थ्रू कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच कि आप उसको। ठीक है। So again, Hirazen is saying, "Okay, thank you." Sorry, I put up the wrong comment. Thank you for the useful information. Thank you for your comment, Hira. And Zaid is saying, very informative answer. We also have similar dual language challenge here in Dubai. So I think, हाँ ये challenge I think हर जगह ही हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे multi-language. If your child is acing in that challenge, I think go for it. अगर आपके चाइल्ड को कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही तो गो फॉर इट, अगर हो रही है तो फिर उसको कॉम्प्लेक्स मत करें। वैसे आई फील लाइक कि आप एक ही लैंग्वेज पे फोकस करें, बच्चे की बाकी स्किल्स के ऊपर जो है फोकस होना इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज सेकेंडरी चीज आ जाती है। आप स्कूल जाते हैं, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डेवलप करना शुरू हो जाते हैं, नए स्किल जनरलाइज करना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक अब काफी सुनने को तो बहुत मिलता है कि सेंसरी नीड्स हैं, सेंसरी डाइट, सेंसरी इंटीग्रेशन, लाइक ये सेंसरी वर्ड हर तरह से इस्तेमाल बहुत होता है इस एरिया में। तो लेट्स टॉक लेट अ मी बिट अबाउट एक्सप्लेन दैट। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होती है. या Sensory integration itself is a very broad term. So sensory integration basically आपने सुना होगा, आप sensory stimuli का जो input है आप environment से लेते हैं, आपका brain process करता है और वो एक out देता है. मैं इसको explain करती हूँ fully तौर पर. Sensory stimuli आपकी 5 senses आपने सुनी होंगी, auditory, everybody knows it because हर कोई उसको school से 5 class से पढ़ता है. Taste, smell, touch, these are your 5 senses जिनको आप उनकी stimulus लेते हैं, आपका brain process करता है और उसके बाद जो है उसका रिस्पॉन्स आता है. अच्छा, अब स्टिमुलाई के अंदर हम दो चीजें कहते हैं. सेंसरी इंटीग्रेशन दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक चीज होती है आपका न्यूरोलॉजिकल थ्रेशोल्ड और एक चीज होती है बिहेवियरल आउटकम. अब न्यूरोलॉजिकल थ्रेशोल्ड क्या होता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं कि न्यूरोलॉजिकल थ्रेशोल्ड ये है कि कितना अमाउंट ऑफ स्टिमुलाई रिक्वायर है उस न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए. जब न्यूरॉन एक्साइट होगा तो वो बिहेवियरल आउटकम देगा, एक रिस्पॉन्स देगा, जिसकी हमने बात की कि स्टिमुलाई से स्टिमुलाई मिला, न्यूरॉन एक्साइट हुआ, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, न्यूरॉन एक्साइट हुआ और रिस्पॉन्स आया. ठीक है, दो तरह के थ्रेशोल्ड होते हैं, एक हाई होता है, एक लो होता है. अब हाई थ्रेशोल्ड का मतलब है कि न्यूरॉन को ज्यादा सेंसरी स्टिमुलाई चाहिए रिस्पॉन्स देने के लिए, एक बिहेवियरल आउटकम देने के लिए. और लो थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि थोड़ा स्टिमुलाई मिला और न्यूरॉन फौरन से एक्साइट हो गया. ठीक है, अब बिहेवियरल आउटकम 4 तरह के होते हैं. अगर मैं उसको जनरली 2 तरह में कर दूं तो एक आपके पास आ जाता है अंडर रिस्पॉन्सिव, एक बिहेवियर आउटकम होता है ओवर रिस्पॉन्सिव, जिसको आप 4 काइंड्स में डिवाइड करते हैं. पुअर रजिस्ट्रेशन, सेंसरी सेंसिटिविटी, सेंसरी सीकिंग और सेंसरी अवॉइडर. अब ये जो पुअर रजिस्ट्रेशन और सेंसरी सीकर होते हैं, इनको ये हाई थ्रेशोल्ड के होते हैं, यानी कि न्यूरॉन को ज्यादा स्टिमुलस चाहिए होता है इनको एक्साइट होने के लिए. ठीक है, स्टिमुलस चाहिए होता है. इसलिए आप देखेंगे कि पुअर रजिस्ट्रेशन के बच्चे को अगर फॉर एग्जांपल वो पुअर रजिस्ट्रेशन है ऑडिटरी में, तो आप उसको आवाज देते भी रहेंगे तो ही फील लाइक कि उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, बिकॉज उसको ज्यादा स्टिमुलस चाहिए टू एक्साइट इटसेल्फ. इसी तरह सेंसरी सीकर के लिए भी वो सीख कर रहा होता है, वो सीकिंग स्टेज में होता है और उसको ज्यादा स्टिमुलस चाहिए टू गिव द रिस्पॉन्स. पुअर रजिस्ट्रेशन में हम कंसंट्रेटेड किस्म का सेंसरी जो है डाइट देते हैं ताकि ज्यादा अमाउंट में डाइट जाए और बच्चा हमें रिस्पॉन्स करे. इसी तरह सेंसरी सीकिंग में हम एडिशनल और ज्यादा सेंसरी इनपुट देते हैं ताकि बच्चा रिस्पॉन्स करे. फिर हम आ जाते हैं सेंसरी सेंसिटिव और सेंसरी अवॉइडर में. इनका लो थ्रेशोल्ड होता है, ये थोड़ा सा सेंसरी स्टिमुलाई में फौरन से रिस्पॉन्स एक्सर्ट करते हैं. इसलिए आप देखेंगे टेक्टाइल अवॉइडर किसी चीज को टच करते हुए फौरन से इमोशनल आउटबर्स्ट देगा या टेंट्रम्स आते हैं. सो दिस इज व्हाट, क्योंकि उनका लो थ्रेशोल्ड होता है. ये 4 बिहेवियर आउटकम्स इन थ्रेशोल्ड्स की वजह से होते हैं. तो आई होप के पेरेंट्स को समझ आ गई कि ये 4 बिहेवियर आउटकम्स क्यों होते हैं और हम इसका ट्रीटमेंट क्या कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज सेंसरी इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट इट इज. नहीं, that was like very clear and concise. I think मेरा भी clear हो गया. So sorry, I'm just looking at the comments. अभी ये 2-3 comments मैं एक साथ ही बताऊंगी. They're from one person. Zaid Ahmed is saying, first of all, he need help for kids aggression. He's further on, he's asking, please let us know how to control aggression and kids ignorance towards schooling. फिर इनकी detailed comment है एक, I wanted to know how to control kids watching too much YouTube. We need guidance on this as well. This is becoming a daily routine for our kids, spending so much time on gadgets, and I feel it affects their mental activeness and ability to socialize physically with friends and family. Kindly focus on these as well. Okay, what were the first 2 questions were about aggression. So उसके लिए यही है कि बिहेवियर थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. व्हाट यू कैन डू इज कि हम उसके लिए देखेंगे कि चीज़ें होती हैं कि क्या चीज़ वो कहते हैं ना कि फिर द ट्रिगर क्या है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है. उसमें हम 2 चीज़ें करते हैं. एक तो आप बच्चे को सोशल स्टोरी, मेरे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई हैव सीन कि सोशल स्टोरी से बच्चा बहुत कुछ लर्न करता है.
सोशल स्टोरी हो सकता है। आप ट्रिगर को फिगर आउट करें कि क्या ऐसा ट्रिगर है जिससे बच्चा एग्रेसिव होते हैं, कोशिश करें कि वो चीज़ मिनिमाइज हो। नहीं तो आप उसको इग्नोर करें, इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। नहीं तो आप बच्चे को रीडायरेक्ट करते हैं, रीडायरेक्शन इज द वेरी गुड थिंग। आप अगर आपको लग रहा है बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, आप उसको बबल्स में या किसी और चीज़ में रीडायरेक्ट करते हैं। और छोटे बच्चे इतने होते हैं कि वो जल्दी भूल भी जाते हैं। रीडायरेक्शन, इग्नोरेंस, ट्रिगर द ट्रिगर, दिस इज द थिंग जो मुझे लगता है बाकी साइकोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ में ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बाकी बात रही स्क्रीन टाइम की, तो आजकल की यंग जनरेशन जो है वो ऑन टू स्क्रीन अलॉट। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनली कि आपका स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, 0 to 2 years, इट्स 0। अगर आप देखेंगे तो 0 से 2 years तक ही बच्चे, पेरेंट्स ज्यादातर बच्चों को स्क्रीन टाइम दिखा रहे होते हैं कि यहीं से ये राइम सीखेंगे और ये स्कूल जाके इनको राइम्स आते होंगे। बट उनका राइम सीखने से आप उनका बहुत ज्यादा टाइम, जो उनका इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना, सेल्फ को एक्सप्लोर करना, अपने इर्द गिर्द पीयर्स को एक्सप्लोर करना, पेरेंट्स को इमिटेट करना, ये सब चीज़ें वो लैग कर जाते हैं बिकॉज वो स्क्रीन टाइम में बिजी हो जाते हैं। अगर आप 2 years से ऑनवर्ड, बेसिकली वो कहते हैं जब बच्चा 3 year को स्कूल जाता है, इंटरनेशनली 1.5 to I think so 1 year, मोस्ट प्रॉब्ली इतना ही होता है, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर ना भी बताऊं, इतना है। और वो कहते हैं कि ये स्क्रीन टाइम भी इसलिए अलाउ है कि स्कूल में दिखाया जाए, बच्चों को स्कूल में एजुकेटिव तरीके से दिखाया जाए, ये एजुकेशनल गेम्स में ज़्यादातर इनकॉर्पोरेट किया जाए, और कुछ 30 minutes आप बच्चों के लिए लेयर एक्टिविटी के लिए रख लें इसमें से। सो अगर तो बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब तो सबसे पहले मैं बच्चे के ऊपर जाने से पहले पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछती हूँ कि फिर आप बताएं आपकी बच्चे के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बच्चे को गेम में इन्वॉल्व करें, उसके साथ फिजिकली प्ले करें और वो अपने आप को स्क्रीन में इन्वॉल्व करना पसंद करें। आप बच्चे को इतना इन्वॉल्व कर लें गेम्स में, फिजिकल प्ले में, उसकी एक्टिविटीज इतनी वाइडन कर दें, उसकी चॉइस की करें। एक तो आपको अपना क्वालिटी टाइम भी मिलेगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे लर्न करेंगे, और दूसरा ये कि वो स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। दिस क्वेश्चन गोज टू पेरेंट्स कि आजकल के पेरेंट्स कितना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है, या उनकी इफ यू डोंट हैव टाइम, आई सी कि आप बच्चों को उनके पीयर्स के साथ छोड़ दें, आप उनको डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करवा सकते हैं। मैं तो बच्चों के फिजिकल प्ले को, बीइंग एन ओटी, तो मुझे तो बहुत पसंद है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिकल प्ले में इन्वॉल्व हो। द मोर दे आर इन्वॉल्व, आपको मैं अपनी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में बच्चे का फिजिकल प्ले ज़रूर इन्वॉल्व करती हूँ, चाहे वो बच्चा टिपिकल हो या एडिशनल नीड्स हो। फिजिकल प्ले जो है हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं जितना स्ट्रेस दूँ वो काम है। और आप फिजिकल प्ले रखेंगे तो स्क्रीन टाइम बच्चे भूल जाएंगे खुद ही। Exactly. Especially, I suppose कि ये जो अभी quarantine का time है, everyone is home. This is also an opportunity to like really bond with your kids, like really spend time with them. So अगर आप डेफिनेटली अब आप भी उनके इसको लिए utilize, उनकी डिफरेंट इंटरेस्ट की एक्टिविटीज, आपको लगता है कि आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप उनकी इंटरेस्ट ढूंढे, उनका इंटरेस्ट किस में है। बच्चों को मेसी प्ले पसंद होता है, बच्चों को हॉप स्कॉच, डिफरेंट गेम्स। छोटा बच्चा है उसको मेसी प्ले पसंद होगा, उसको टिकलिंग करना पसंद होगा, उसको रफ हाउसिंग करना पसंद होगा। हम आबा वो जैसे आई सी के जैसे वो पुराने जमाने में करते थे ना, लाइक एरोप्लेन बनाना एंड ऑल दैट, आप बच्चे के yeah, साथ करें तो सही, वो कितना एंजॉय करेगा। उसके बाद उसको स्क्रीन टाइम भी बोरिंग लगेगी। आई फील लाइक फिजिकल प्ले जो है वो सोल्यूशन है स्क्रीन टाइम का। and definitely टेस्ट Haja, करके I दें बच्चों definitely को। agree with you. We're gonna take another comment. Just gonna click on it. Amjad Ali is asking how to deal with kids who bite nails. नेल बाइटिंग के पीछे भी ट्रिगर द ट्रिगर, क्या ट्रिगर है, Mm-hmm. एंजाइटी में करता है, स्ट्रेस में करता है। अच्छा ये भी ज्यादातर जो है ना बिहेवियर की डोमेन में आ जाता है, बिकॉज वो सबसे पहले रूल आउट करके हमें भेजते हैं कि स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं है। उसके लिए भी आई थिंक सो के बिहेवियर थेरेपी ज्यादा अच्छा गाइड कर सकेंगे, बिकॉज ये उनकी डोमेन ज्यादा अच्छी। ठीक है. Sana Gilani is asking, how can we make the child calm or make them relax when she exhibit nail pinching and scratching with respect to sensory needs and especially on fingers? ओके, इफ योर किड इज स्क्रैचिंग और पिंचिंग, दिस मीन्स कि आप जो है उसके साथ व्हाट आई डू इज कि आप डीप प्रेशर उसको दें, उसके हैंड्स को आप इस तरह करके डीप प्रेशर्स दे सकते हैं। एक्टिविटीज ऐसी इन्वॉल्व कर सकते हैं जिसमें डीप प्रेशर्स हो।
फॉर एग्जाम्पल एनिमल वॉक्स हो सकती हैं, व्हील बैरो वॉक हो सकती है। इसके अलावा आप उसको मंकी बार हैंगिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास मंकी बार नहीं है, और जैसे कि हम बात करें कि हमने एक्सपेंसिव नहीं होना, जैसे कि हमारा टॉपिक है, तो आप खुद से बच्चे को उसके ये जो ये वाला जॉइंट है, आप उसको सपोर्ट करें एंड उसको पकड़ के आप उसको हैंग करें। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव टू मंकी बार। अक्सर आपने देखा होगा पेरेंट्स के साथ हैंगिंग गेम्स खेल रहे होते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ रफ हाउसिंग। आप उसके साथ मंकी बार की तरह हैंगिंग एक्टिविटी करें, और पुशिंग, पुलिंग, कैरिंग हैवी वेट्स, ये सब चीजें जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है। सो हाजा, आई एम अज्यूमिंग आई थिंक सो इस सब के बाद आपका बच्चा ज्यादातर, और आपको जब कभी लगे या श्योर आप फिंगर हैंड पेंटिंग कर सकते हैं। उसके थ्रू आप अपने हाथ से उसके ऊपर प्रेशर डालें। कोई भी जो है हाई रेजिस्टिव पट्टी लेके उसको स्ट्रेच करें, जिसमें भी बच्चे का प्रेशर एग्जर्ट हो, वो पिंचिंग और जो है वो स्ट्रेचिंग करना बंद कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये और इसके अलावा बिहेवियर थेरेपिस्ट भी होंगे। ठीक है। I have a question. So there's this child I know who would, you can say, does not sit still. ठीक है, he would be jumping up and down. माशाल्लाह से काफी एनर्जी है. तो is this, do you think it could be because कोई इसकी मूवमेंट की नीड है? बिकॉज वो हर वक्त उसको होगा कि कभी जंप करना है अलॉट. ही हैज अ ट्रैम्पोलिन एज वेल. ठीक है, तो ट्रैम्पोलिन पे भी ही जंप्स अलॉट. अगर ट्रैम्पोलिन पे नहीं कर रहा तो जो बाउंसिंग बॉल जो नहीं होता, सा वजन साइज वाला उसका, मूवमेंट सीकर है, मूवमेंट सीकर, या दैट्स व्हाट आई फील. दिस इज, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि उसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो एज कम्पेयर टू उसके पीयर्स, उसको सेंसरी स्टिमुलाई जो है एक्सेसिव चाहिए उसकी न्यूरॉन को एक्साइट करेंगे, इसलिए वो मूवमेंट्स को सीख करता है, उसको एंजॉय करता है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक तो ट्रैम्पोलिन अगर आपने दिया है, बेसिकली अगर आप उसको रैंडम जंप करने देंगे तो आपकी एनर्जी और से और इंक्रीज होती है। आई फील लाइक अगर आपने उसको ट्रैम्पोलिन जंप करने के लिए दिया तो गोल ओरिएंटेड टास्क रखें। कोई भी टास्क आपका पर्पसफुल होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर टास्क में लेयर, गोल ओरिएंटेशन या पर्पस नहीं है तो उस टास्क का कोई फायदा नहीं। इवन ट्रैम्पोलिन जंपिंग का भी नहीं। आप उसका कोई गोल ओरिएंटेशन रखें, बच्चे के साथ काउंटिंग करें 1 2 20, जितनी आपको उसकी लिमिट लगती है आप उसको, बिकॉज हाइपर एक्टिविटी में ये होता है कि वो हाई एनर्जी होते हैं, हम उनको थकाते हैं, उनको फिजिकली ड्रेन करते हैं। फिजिकली ड्रेनेज जो है बहुत बड़ा इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन आप उसको छोड़ ना दें कि वो ट्रैम्पोलिन पे जंप करते ड्रेन हो जाएगा, थक जाएगा तो जी ये बैठ जाएगा, नहीं। आप उसको काउंट दें। आपको लगता है वो 50 पे थकता है, आप 60 तक काउंट कराएं, लेकिन आप काउंटिंग दें ताकि बैक ऑफ द ब्रेन उसके माइंड में भी एक काउंटिंग चल रही हो, वो अपने आप को फ्री ना फील कर रहा हो, ताकि उसको पता चल रहा हो कि गोल ओरिएंटेशन है। जब ये मुझे स्टॉप करेंगे तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करके स्टॉप करना है। फिर आप उसको स्टॉप करने के बाद आप जंप करें, उसका टर्न टेकिंग एक्टिविटी करें। शुरू में टर्न टेकिंग थोड़ी करें, फॉर एग्जाम्पल 2 जंप्स वो करे, 2 जंप्स आप करें, क्योंकि उसके पास थोड़ी चीज के लिए स्टेमिना है कि वो अपने आप को कंट्रोल करे। आहिस्ता आहिस्ता आप उसका कंट्रोल बढ़ाते जाएं। सिर्फ यही चीज नहीं, इसके अलावा आप उसको फिजिकली ड्रेन करें। फॉर एग्जाम्पल आप साथ रनिंग करें। रनिंग ऐसी होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कौन फॉर कोई भी घर है, कोई भी चीज है, आप कौन ट्री को जाके टच करके आते हैं और वापस आता है, गोल ओरिएंटेशन होगी। बच्चे के माइंड में होगा वो रैंडम रन नहीं कर रहा, वो रन कर रहा है तो उसके पीछे एक पर्पज है। इस तरह उसकी एनर्जी भी ड्रेन होगी और वो जो है वो गोल ओरिएंटेशन भी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि उसको जो मूवमेंट चाहिए वो गोल ओरिएंटेशन से ले रहा है, वो रैंडम रनिंग से नहीं ले रहा, वो गोल ओरिएंटेड मेथड से ले रहा है। इसी तरह आप उसको मंकी बार हैंगिंग कराएं, उसको एनिमल वॉक्स, क्रॉस मोटर्स, ऐसी एक्टिविटीज कराएं जिसमें जो है उसकी एनर्जी ड्रेन हो। छोटे बैलून्स जो है वो ब्लो करके उसको पॉप करवाएं ऑन द फ्लोर। और फॉर एग्जाम्पल उसको पसंद आ रहा है तो आप कहें कि ये वाला ऑरेंज बैलून पॉप करना है, अच्छा वील वेट फॉर 2 seconds, 1 2 या 5 seconds, 3, नाउ यू कैन पॉप इट। अब उसने 3 seconds के लिए वेट किया, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वेटिंग स्टेमिना बिल्ड करें। इस तरह ट्रैम्पोलिन में भी वेटिंग स्टेमिना करें। रनिंग जो है, और आप उसके साथ कोई भी पेट्स लेकर उसको दे सकते हैं। ओके लेट्स गो, पेट्स को जो है आपने केज में डालना है, रन करके पेट्स को, गोल ओरिएंटेशन है, थ्रू आउट वो रैंडम रन नहीं कर रहा, उसके पास उसके माइंड में एक पर्पस है। सो ऐसी एक्टिविटीज रखें, ऐसी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज रखें जो एनर्जी ट्रेनिंग भी हो, गोल ओरिएंटेड भी हो और उनका पर्पस भी हो, ताकि थ्रू आउट उसका ब्रेन उसको चैनलाइज करे, वो रैंडम ना करे। सो इट विल हेल्प हिम अ लॉट कि वो अपनी एनर्जी ड्रेन कर सके। ठीक है।
So I'm just going to take the follow-up comments. Ahmed is saying, yes, I agree. We as parents are giving less time to our kids. बेसिकली हमारा टाइम इतना फास्ट हो गया कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो गई हैं. सो इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स टाइम. ऐसा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फास्ट होगी, लेकिन आप कोशिश करें कि दिन में कोई ना कोई आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी स्पेंडिंग टाइम जरूर रखें. हाँ, they will remember it for years. Exactly, ये भी बात सही है. I mean, like obviously we all understand different responsibilities हैं, काफी life fast paced हो गए, तो I think it's not only about कि आपने कि अपने बच्चों के साथ like this many hours रखने हैं, जितना भी time आप उनके साथ spend कर रहे हैं, even if it's like वो एक hour दे रहे हैं उन्हें, तो that needs to be like full attention आपकी उनकी तरफ होनी चाहिए. 15 minutes हो, लेकिन quality spending. Exactly. आपने आंसर किया था क्वेश्चन वो नेल पेंटिंग एंड स्क्रैचिंग का, तो सना इज सेइंग थैंक यू फॉर योर कमेंट सना. मारुख इज आस्किंग kids who take off their clothes due to sensory needs, how to control them. अच्छा, इस चीज़ के ऊपर स्टार्ट मैं करूँगी कि बिहेवियर थेरेपी और ओटी जो है कंबाइन होती है. बिकॉज इससे पहले मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में बिहेवियर थेरेपी को इन्वॉल्व किया था, तो पेरेंट्स पूछेंगे कि ओटी और बिहेवियर क्यों कंबाइन होती है. तो मैं इसका थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेन कर दूं कि ये स्ट्रेटेजी क्यों यूज होती है. शुरू में सेंसरी नीड्स तो डेवलप होती है. सेंसरी नीड्स के रिस्पॉन्स में मैंने आपको बताया था बिहेवियर आउटकम्स आते हैं, जो हमने भी डिस्कस किया. ठीक है, होता तो उसके पीछे जो बैकलाइन होती है वो सेंसरी इश्यूज होते हैं. सेंसरी इश्यूज से जब बच्चा बिहेवियर आउटकम करता रहता है तो वो उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है. हम जब ओटी उसकी सेंसरी इश्यूज को फोकस करके उस पर काम कर रहे होते हैं, वो स्टिमुलस उसको दे रहे होते हैं और उसका जो उसकी नीड पूरी कर रहे होते हैं वो तो हम पूरी कर देंगे, लेकिन जो उसकी वजह से उसने बिहेवियर हैबिचुएट कर लिया होता है उसकी वजह से हम बिहेवियर थेरेपी को साथ कंबाइन करते हैं कि जो हैबिचुएशन है वो जो है वो डिक्रीज हो सके. या अगर बिहेवियर वाले इसलिए रिकमेंड करते हैं कि अगर वो बिहेवियर को डिक्रीज करें तो साथ साथ अगर दोबारा सेंसरी इशू की वजह से वो बिहेवियर दोबारा ना आ जाए. तो इस चीज में एक बिहेवियर थेरेपिस्ट और एक ओटी हमेशा कंबाइन काम करता है. ये इस वजह से मैं बार बार ओटी और बिहेवियर को फोकस कर रही हूँ. अच्छा, अब अगर बच्चा इफ ही टेक्स ऑफ देयर क्लोथ्स, सो उसके लिए आपके पास विलबर्ग ब्रशिंग प्रोटोकॉल होता है जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपरली आप उसको यूट्यूब कर सकते हैं. बिकॉज उसके कुछ जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आई कांट एक्सप्लेन इट इन द वीडियो. अगर आप यूट्यूब करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा, और उसके लिए स्पेशल ब्रश होता है जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे बच्चे को रिलैक्स करने के लिए भी, और आप क्लोथ्स इस वाले इशू के लिए बच्चे के साथ मसाज कर सकते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए. ठीक है, ताकि जो उसको टेक्टाइल सेंसिटिविटी हो रही है उससे वो काम डाउन हो, रिलैक्स हो, और आप उसको डीप हग्स दें. और इसके अलावा बच्चे को जो है सोशल स्टोरीज के थ्रू भी आहिस्ता आहिस्ता बताएं और एक्सप्लेन करें, या गर्ल दिखाएं या बॉय दिखाएं, हाउ इट लुक्स, इट्स अ सुपरमैन शर्ट, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी ट्रेनिंग करें. सो इट विल हेल्प अ लॉट. ठीक है. Sana Gilani is asking, can you please suggest any sensory toys that cover all language and sensory modalities, example auditory, visual, or any musical? Okay, sensory toys, there are a lot of sensory toys. फिर हम उस बात पे आ जाते हैं. अच्छा जी, that cover all language and sensory modalities. Actually, if I get disconnected, अच्छा मेरी थोड़ी सी बैटरी लो हो गई है, so if I get disconnected, don't worry. So basically, sensory toys में हम cause and effect toys use करते हैं बच्चों के लिए. बेसिकली सेंसरी टॉयज मैं इतना रिकमेंड नहीं करती. आई से कि बिकॉज रिकमेंड आई डू इट, बट उसके लिए मैं बच्चे को ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चे की क्या कंडीशन है. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, क्योंकि हर बच्चे की हर लैंग्वेज और सेंसरी मोडेलिटी एक टॉय से के बताने से कवर नहीं होगी. हर बच्चे की अपनी लैंग्वेज का एक पेज होता है और एक उसकी सेंसरी आप कह सकते हैं कि पॉइंट होता है. अवॉइडर होगा, एक सेंसिटिव होगा, तो हर एक का टॉय जो है बहुत चेंज होता है. तो ये किड टू किड करता है. लेकिन अगर आप बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करती हैं तो मैं कॉज एंड इफेक्ट टॉयज को, जिसमें साथ साथ सेंसरी उसमें टेक्सचर आ सकता है, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट टॉयज को आप प्रेस भी करें तो उसमें कुछ कभी हिंजेस होते हैं, उसमें डिफरेंट जो है टेक्सचर्स दिए होते हैं, उसमें ऑडिटरी साउंड्स होती हैं, विजुअली भी उनमें लाइट्स होती हैं.
तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रिकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप लैंग्वेज और सेंसरी मोडेलिटीज के लिए करेंगी तो वो आई थिंक वो किड टू किड वेरी करेगा। Sana, I would suggest कि अगर आप you can like detail में giving your child's background, you can ask us in our inbox, and then Hajra can get back to you with more detail. क्योंकि obviously Hajra को थोड़ी सी detail चाहिए होगी to answer your question. I think before your battery dies, Hajra, thank you so much. This has been really engaging. Before we leave, what piece of advice will you give both therapists, occupational therapists, I suppose the new people who are venturing out into this field, उनके लिए क्या आपकी advice होगी? And then to parents. To the new therapist out, I'll say कि you just have to believe. Learning जो है आपके माइंड में होना चाहिए कि आई हैव टू लर्न, और आप हर रोज जिस दिन आप अपने क्लिनिकल जो है डे को आते हैं, अपने क्लिनिक में आते हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि मेरा ये रोज एक नई चीज लर्न करने के लिए। एंड डेफिनेटली आप जब आप इस फील्ड में आएंगे तो यू विल गेट टू नो कि आप हर रोज लर्न करेंगे। एटलीस्ट मैं तो हर रोज लर्न करती हूँ। सो आप हर रोज बच्चे के साथ नई एक्टिविटी, बिकॉज इवन आपका गोल सेम भी हो तो आपको एक्टिविटीज चेंज करनी पड़ती हैं। आप अपने आप को कभी भी स्टैटिक मत करें, अपने आप को हमेशा लर्न करें, एक्सप्लोर करें थ्रू आउट। जितना भी अपने एरिया को, डोमेन को एक्सप्लोर करेंगे वो हमेशा काम होगा। लर्न करें, लर्निंग इज द बेस्ट थिंग, और आपको ओटी में बहुत हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे के प्ले स्किल्स को और उसके इमोशंस को, जब आप उसके सेंसरी मोटर और कॉग्निटिव स्किल्स को देख रहे हो तो उसके साइको सोशल स्किल्स को कभी इग्नोर मत करें, उसके साथ साथ वो चीज़ों को भी ज़रूर लेकर चलें। और पेरेंट्स के लिए एक ही है कि प्लीज़ फॉलो अप्स फॉलो अप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एट होम। अगर आपका थेरेपिस्ट जो है ना, आप उस थेरेपिस्ट को बेस्ट ओटी, बेस्ट एसएलपी खुद कहेंगे जब आप खुद फॉलो अप्स घर पे करे होंगे। एक थेरेपिस्ट बेस्ट तभी बनता है जब उसके पेरेंट्स, उसके क्लाइंट के पेरेंट्स घर में उस चीज को फॉलो अप करे होते हैं, उस एडवाइस को। ऐसे ये बात नहीं है कि बच्चे में प्रोग्रेस थेरेपी से नहीं आएगी। हमारे पास बच्चा वीक में मैक्सिमम थ्राइस आ सकता है, लेकिन बात ये है कि हमारे पास 45 मिनट्स है, 23 आवर्स आपका बच्चा आपके पास है, वो आपसे टाइम मांगता है। थेरेपी इज अ स्लो प्रोसेस। आप उसको उस स्लो प्रोसेस में अगर अपना इनपुट डालेंगे तो बच्चे को जो पेरेंट्स से लर्न करेगा वो थेरेपिस्ट से भी इतना अच्छा लर्न नहीं करेगा जितना वो अपने पेरेंट्स से अडेप्ट करेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर इट्स पेरेंट्स। तो ज़रूर अपने बच्चे के साथ फॉलो अप जो है ज़रूर करें, और यू विल गेट द बेस्टेस्ट रिजल्ट्स। That's all. Thank you so much, Hajra, for joining us. It has been a pleasure to have you. Thank you so much. I really enjoyed answering all the questions. I hope I've answered everything. Even if you have any questions, do let me know. Do inbox me. I'll try to give the answers as much as possible. It's all about wearing. So the first question comes over here. आप ऐसे ही OT को अवेयर कर सकते हैं, जितने पेरेंट्स के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें, जितने लोगों को आप अवेयर कर सकते हैं। Exactly. And I would like to say thank you to our viewers as well. You have been really engaging. We had some really interesting questions, and we hope all of them were answered. If any question was left, please don't worry. We'll get back to you in the comments. Okay? Sure. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay.